Just a minute. So if this first 7 ribs are called as 2 ribs because they are attaching with the sternum, then 8, 9, 10th are false ribs basically because they are attaching to each other. Then it is attached to sternum. So Then 8, in 9, 10 green, are false ribs. 8, 9, 10 are false. 8, 9, 10 are false ribs. Means 2 ribs attached directly to the through costal cartilage to sternum. While the false rib attach each other, then they attach to sternum. Then last 2 ribs, 11th, 12th, these are called as floating. They have got no attachment. Here in this green color, you see there are 2 ribs, 11th and 12th, they are floating. Okay. So true ribs are 1 to 7, false 8, 9, 10, and 11, 12 are floating. Then I have sent one of this regarding the chest wall blood vessels. I have sent on Telegram this picture regarding intercostal, anterior intercostal arteries. This is important thing. Upper 6 anterior. This is anterior, and this one is posterior. Lower. Posterior intercostal arteries is from the aorta, descending aorta, while anterior upper six intercostal arteries from internal mammary artery. This artery is important. This is also called as internal thoracic artery. This supplies breast. Yes, which supplies the breast and which is used in coronary artery by CABG. This artery is utilized on the left side most of the time. So you can see in this picture, left internal thoracic artery. This is internal thoracic artery. So this is used in coronary artery bypass, GCABG, internal mammary or internal thoracic. And lower 6 intercostal, they are from musculophrenic. If you see here, so this is musculophrenic. So anterior intercostal, this we are talking about anterior intercostal. If you see this picture, there is internal thoracic artery, and from there anterior intercostal, and here is the posterior intercostal. They anastomose each other surrounding this area. So these are the intercostal arteries. Posterior from the descending aorta, anterior upper 6 from internal mammary, lower 6 from musculophrenic. Okay. What is the importance in future? You can see this. The blood supply of the sternum is from internal mammary. Actually, internal mammary supplies to sternum also. After CABG, using internal mammary artery as coronary graft. When internal mammary is used as coronary graft, sternum takes blood supply from collaterals. So here that example is given, CABG. This is, you can see internal mammary artery, and this is utilized to anastomose the vessel where there is this at this end when there is stenosis. So this artery is supplying blood. So CABG is internal mammary artery, and another vein is used is great saphenous vein. Okay. Then just now we have seen the intercostal muscles. The arteries you have seen, intercostal, these are the muscles. If you see, this is upper rib, this is lower rib. Outermost is external intercostal, middle is internal intercostal, and innermost is innermost intercostal. लेकिन You एक see the direction of यहाँ वो जो चेस्ट वेन डालते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट ऑफ द नर्व आर्टरी एंड वेसल वेन उसका अरेंजमेंट पता करना. Yes. Next उसमें है वो, that is in the next. So now this is just to understand these muscles of external intercostal. It is just like when you put the hands in the pocket. जो अपना abdominal muscles भी है ना, hands in the pocket, तो anteriorly downward. External intercostal is the same arrangement है. Internal intercostal is opposite to this. Okay. Now if you see here is the muscle of inspiration. Muscle of inspiration is external intercostal diaphragm and deep is, ये पूछता है लेकिन हमिद भाई, हेलो, It is 75% mean muscle of pairas. हमिद भाई ये पूछता है लेकिन Yes. ये Muscle of inspiration muscles are external intercostal 25%, but the main is the diaphragm.
Diaphragm is the main muscle of inspiration. और डीप का Okay. है SSS, स्कालीन Hmm. sternocleidomastoid serratus anterior. Yes. S. Killing. Yes. Hmm? Hmm. And deep inspiration. If someone is taking deep inspiration, then internal intercostal. Internal inspiration, internal intercostal. Okay. I. Latissimus, डॉर्सी. Q, ये एक्सपीरेशन quadratus, का है तो and ये एक्सपीरेशन का है. expiration. This is ये called the एक्सपीरेशन का है. deep expiration. ILQA. IIQA. कैसा बताओ? इंटरनल इंटरकॉस्टल. Okay. Just a minute. I is internal intercostal. Then Q is quadratus. Then A is abdominal muscle. हाँ. Then L, IQAL, latissimus dorsi. ILQA. Okay, ILQAL. So, so ठीक this है. is regarding muscle of inspiration and expiration. This is what you are asking. Intercostal neurovascular bundle. So here is beautifully arrangement: vein, artery, nerve, van. This is van. Vein is uppermost. Vein, artery, and nerve is lowermost. On the lower side of the rib. This is the rib. Lower end of the rib, there are neurovascular bundle. So when you put the intercostal drain, you have to put just on this level, not on the lower border, but on the upper border of the rib. वैन है. You have to put the drain. Drain has to be put on the upper border. This is the rib upper border. So you put it not on the lower border. So lower border there are vessels. This is the question asked. Okay. So van is on the lower border of the rib. Lower border. Okay. It is close to lower border. On inner surface of lower costal cartilage, there is intercostal and innermost intercostal from above downwards. These are the intercostal vessels. Neurovascular bundle on the bottom of the rib, on the superior region of intercostal vessel, intercostal vein, artery. So if there is bleeding after chest tube drain, it comes commonly from the intercostal artery. Intercostal artery is the main vessel which causes bleeding sometimes inside. So whenever there is any trauma, the cause of bleeding inside is intercostal. That is posterior intercostal. Posterior is directly coming from the aorta. In the beginning only it is given. Posterior intercostal is from the branch of descending aorta. Bleeding of the chest tube in direction mainly from the posterior intercostal artery. Yes. Anterior intercostal है कि top 6 and lower 6. Yes, 6. So intercostal nerves, they supply parietal pleura. This is also asked. Supplies intercostal the nerves, parietal pleura, because that is sensitive. You get a pleuritic pain because of intercostal nerve, and laterally, this is laterally, while phrenic nerve supplies medially. Phrenic nerve is also having sensory supply, okay, for parietal pleura. So sensory nerve supply to parietal pleura is from intercostal nerve as well as phrenic nerve, okay. So each intercostal nerve corresponding to above rib as first intercostal nerve passes in the first intercostal space. So nerves are corresponding the ribs. Trauma in the chest may cause pain in the chest radiating to upper abdomen called intercostal neuralgia. Upper abdomen, it causes upper abdominal pain sometimes. Because now coming to site, this is the site for chest tube. This now we are discussing the chest tube has to be at the upper surface of the rib, not the lower. So in which space you are going to put? So the safe triangle, this question is asked, which is the safe triangle? The triangle between pectoralis major anteriorly. This is the border of pectoralis major. This red one अच्छा, ये लेफ्ट is साइड राइट साइड pectoralis कुछ है? major. Okay. लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ है? लेफ्ट साइड. This is left side. This hand is of left side. No. अभी हम क्या कर रहे हैं? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन निकालना है.
Axillary, this is the axillary line, mid axillary line we have to. This is anterior border, this is posterior border. Here posterior there is latissimus dorsi, anteriorly there is pectoralis major Major. and level of the nipple. Okay, Hmm. then इसका center निकालना है like this. Hmm. So this is the fifth intercostal space in the mid axillary line. Anteriorly you have to see pectoralis major, posteriorly you have to see latissimus dorsi. Latissimus Lower dorsi. border should be the level of nipple and upper is superior base of axilla. This is the axilla. हाँ So this is forming a triangle like this. So हाँ this is supposed to be the safe triangle. हाँ, तो बताओ, आप This is बताओ. called as anteriorly pectoralis major, हाँ, posteriorly posteriorly latissimus dorsi. latissimus dorsi, हाँ, and inferiorly at the line base of at the nipple. nipple level. Okay, And midline to ये it. ऐसा होगा. Yes, ये होगा anterior, posterior, nipple level. This is horizontal. This is nipple level. This is anterior is the pectoralis major. Posteriorly is latissimus dorsi. हाँ, And this is apex is going towards the axilla. 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 Superiorly up to the axilla. Axilla, it will be forming a triangle. इसके muscles in the floor. Now, when you have found the point, now as soon as you take an incision on the skin, what muscles you are going to pierce? First is here at this point, you will be getting serratus anterior. हमने देखा था एक्सिला का lateral जो medial wall of the axilla है, ribs and serratus anterior. Serratus and Serratus anterior. Then you will get intercostal muscles, external, internal, and innermost. Three intercostal muscles. उसके पहले serratus anterior is also going to come. ठीक है? हाँ. हो गया, ये एक चीज क्लियर हो गई. सेफ ट्रायंगल इज एंटीरियरली पेक्टोरलिस मेजर, पोस्टीरियरली लैटिसिमस डॉर्सी. एकदम एकदम. नाउ कमिंग टू thoracic inlet. हाँ. आप आराम से चलो एक हमिद मिनट, भाई. जस्ट I understand just a minute. that. हाँ, आराम से एकदम. जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट क्लियर वन थिंग. एक मिनट आया. ओके, ठीक. कितना घंटे का सर्जरी था हमिद भाई? अरे इट वाज अराउंड 2-3 hours, मोर देन 3 hours. तो ओ बाबा. पेशेंट वाज लिटिल बिट क्रिटिकल, दैट्स व्हाई उसके लिए रिलेटिव एंशियस रहते. नहीं नहीं तो नहीं, हम समझ गए थे कि वो जो गड़बड़ है. okay, now regarding thoracic inlet. हाँ, This ये भी is बहुत फेवरेट क्वेश्चन. बहुत बहुत फेवरेट है. इसमें का जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है अबाउट सर्वाइकल, डायरेक्टली मैंने इसको पहले ही निकाल दिया. सर्वाइकल रिब. क्वेश्चन इज दैट इट इज ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7. 0.5%. 0.5. यानी इफ यू सी, ये जो thoracic inlet है, इसमें you can see here C7 is somewhere like this. C7 से इसका ट्रांस, यहाँ अगर देखोगे वर्टिब्रा, ये रिप्स के, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है. फ्रॉम हियर अगर फर्स्ट रिप के ऊपर एक बैंड आता है फॉर ये साइड, अगर इफ दिस साइड इफ यू आर सीइंग, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस बैंड समवेयर, तो इट विल कॉज कंप्रेशन आइदर टू लोअर ट्रंक जो होता है अपने ब्रेकियल प्लेक्सस का, और टू द ब्रेकियल आर्टरी. ये दो चीजें. अभी देखो यहाँ पर मैंने सर्वाइकल रिप को समझने के लिए आई हैव जस्ट ब्रेकियल प्लेक्सस, नहीं तो कंप्रेशन टू द ब्रेकियल प्लेक्सस और सबक्लेवियन आर्टरी. सेंट फोटोग्राफ. सर्वाइकल रिप का क्वेश्चन बताता है, तो यू हैव टू क्लियर. यू आर सीइंग दिस. ये यहाँ पर ब्यूटीफुली द पिक्चर इज गिवन. स्किन इज गॉन. ये जो इफ यू सी दिस पिक्चर, यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? ओके, यू आर नॉट गेटिंग स्क्रीन. ना, यू आर प्रेजेंटिंग टू अवॉइड ऐसा लिखा हुआ है. ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. नाउ आर यू?
आप आज पढ़ा रहे हो, यही आपका बड़प्पन है। Now are you getting screen? हाँ, अब आ गया। Hello? हाँ, आ गया, थैंक यू। नहीं आ गया, चल ठीक है। बिकॉज ठीक 3 है ठीक hours है, of now it will surgery do. is not easy. Hmm. So about thoracic inlet, cervical rib is the first question which is commonly asked. It is extension, elongation from the transverse process of C7. C7.5%. C7 की बहुत सारी चीजें। यस, C7 और ये क्या होता है, C7 वर्टिब्रा में देर इज वर्टिकल आर्टरी, C7 के अंदर वो नहीं रहता है, उसको ट्रांसवर्स प्रोसेस में होल नहीं रहता, वर्टिकल आर्टरी, दैट इज आल्सो क्वेश्चन। C7, वो ठीक है। C6 के अगेंस्ट में प्रेस होता है ना। हाँ, वो दैट वर्टिब्रल आर्टरी जो जाती है ना, मैंने दैट इज दैट पिक्चर इफ यू सी ऑन योर फोन, मैंने जो इस पे वो किया था, अच्छा, मैंने तो वो जो, रिगार्डिंग वर्टिब्रल आर्टरी, अच्छा जो तो आपने इसमें टेलीग्राम में भेजा। टेलीग्राम में भेजा, वो इसलिए कि वर्टिब्रल आर्टरी जो पास होती है ऊपर, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा के अंदर जो फोरामिना होते हैं, इट इज पासिंग थ्रू द फोरामिना ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। So C7 has got no foramina. It enters through C6. ये क्वेश्चन आता है, C7 is there is no foramina. It enters through C6. आप पिक्चर्स अगर देखोगे टेलीग्राम के, हाँ, जो तो फर्स्ट वाला पिक्चर, यस फर्स्ट वाला भी है, फिर उसके बाद में यस जो, हाँ उसमें फिर फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, सेकंड में थर्ड पिक्चर देखिए, दैट आई हैव गिवन। C7 has no foramina for vertebral artery. यस, और Cervical ring is C7, elongated of transverse process of C7. यस C7 की ये दो इम्पोर्टेंट है। इफ यू जस्ट रिमेम्बर दिस पिक्चर्स, so you will understand कि इसमें जो वर्टिब्रल आर्टरी है, इट इज डायरेक्टली इंटरिंग थ्रू C6। तो वही C7 का फंडा यहाँ पर है, C7 से इसका सर्वाइकल रिप का होता है। और यही पिक्चर्स को आप आगे देखोगे जाकर, तो हियर द पिक्चर ऑफ सर्वाइकल रिप इज देयर, इट इज अटैच इन बिटवीन द टू स्केलिनी। अगेन, अगर सर्वाइकल रिप का एक्सटेंशन होता है तो वो दो स्केलिनी के बीच में आते, जहां से आर्टरी जाती और ब्रेकियल प्लेक्सिस जाती, इसलिए ब्रेकियल प्लेक्सिस इज समटाइम्स लोअर, T2 T1 C8 जो है, लोअर ट्रंक उसका कंप्रेस होता है, इरिटेट होता है, और ब्रेकियल आर्टरी, ये अपना ब्रेकियल आर्टरी, सब क्लेवेन आर्टरीज है, ये होती है उसमें सब क्लेवेन आर्टरी, हाँ, ठीक है। स्केलिन एंटीरियर और मीडियस के बीच में ब्रेकियल प्लेक्सस और सबक्लेवियन आर्टरी रहता है। वहीं पे आके सर्वाइकल रिप भी अटैच होता है, इसलिए वो उस जगह पे कंजेशन से लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस इरिटेट होते बिकॉज ऑफ सर्वाइकल रिप। सो हियर इट इज गिवन कंप्लेन, कंप्रेस ब्रेकियल प्लेक्सस लोअर ट्रंक, ठीक है। सेकंड थिंग इज कंप्रेस सबक्लेवियन आर्टरी ओके, इनिशियली, देन सबक्लेवियन वेन इज द लेट साइन। सबक्लेवियन वेन क्यों लेट है कि इट इज एंटीरियर टू स्केलिनस एंटिकस, इसलिए वहां तक विथ फ्रेनिक नर्व। यस, विथ फ्रेनिक नर्व। यस, तो ये जो सिप्सन्स फेशिया, दिस इज द फेशिया सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो थोरासिक इनलेट के पास जो लंग्स है, इस एरिया में जो फेशिया आता है, एपेक्स ऑफ द लंग, वहां पर जो फेशिया है, दैट इज कॉल्ड एज सिप्सन्स फेशिया। सिप्सन्स फेशिया। और यस, ये जो सर्वाइकल रिप का टेस्ट होता है, उसका नाम है एडसन्स टेस्ट। यस, क्या है उसमें कुछ हैंड्स रेज करके, यू जस्ट सी फॉर दिस एडसन्स, ठीक है, वो देखेंगे। हाँ, वो हाथ जो ऐसा लंबा करके ऐसा खींचते और गर्दन उल्टा उल्टा तरफ घुमा लेना पड़ता है। Yes, on opposite side. Yes, On the you opposite. do it on opposite side. So that becomes हाथ को वो होता है पेन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाउ ट्रैकिया, अभी और जो हमने देखा था बिगिनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज क्रिकॉइड जो है, ये मैं पहले ये देख लो, ये फिगर, दिस इज मोस्ट टाइम आस्क्ड। क्रिकॉइड, H is hyoid, T is thyroid, and C is cricoid. H, T, C. Above downwards कैसा है? Hyoid is first, then thyroid cartilage. HTC. Yes, the hyoid is first, highest, then thyroid is in between, and cricoid is lower. So hyoid is at the level of third cervical.
C3. Cricoid, thyroid is at C4, immediately below hyoid bone. Then cricoid is C6. So if you understand this, trachea starts from C6. C5 Six is to it, C5 to D6 ना? cervical. This is starting from C6. Now trachea is starting from sixth cervical vertebra, level of trachea. Okay. Can are you Okay. clear about this? Yes, yes. Because here C6 is to also, C5, I think. yes, here it's given. Okay, trachea is C6 to T4 T5 carina. So when you are seeing this in the X-ray, you have to see trachea 6 cervical, 6, 7, 8, T1, T2, T3, T4, T5, T6 like this. Hmm. T5 to T6 you are thinking. Hmm? Hmm. Sorry, C6 to 6 to T5, T4, 5. Hmm. Hmm? So here it is given C6 to again C5 और ये हो गया T6 here HTC. थायराइड हो गया C3 H में, थायराइड हुआ C4 में और C क्रिकॉइड होगा C6 में, राइट? yes yes. अब हम यहाँ पर जो आप कैरिना बताए द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया T4 5 ट्रेकिया डिवाइड्स T4 T4 5 पे divides into two bronchus right and left. So 6 के बाद 7 तो कितने वर्टिब्रा कवर कर रहा है? इट इज रफली कवरिंग C6 C7 then C7 it starts T1 T1 2 3 4 5. और 6 5 वर्टिब्रा रफली 5 वर्टिब्रा आर कवर्ड. ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रख लेंगे? T4 5 ट्रेकिया C6 to T4 5 हाँ. और HTC is 3 4 6. HTC अपना हाइट थायराइड क्रिकॉइड हाँ, HTC. ये लेवल्स बहुत पूछते हैं.
यही पूछते हैं बार बार। और जो एक और एक पॉइंट है, और ट्रैकेस्टोमी का जो क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। हाँ, ओके, उसमें नीडल था थोड़ा नीडल ट्रेकोस्टोमी। ट्रैकोस्टोमी इमीडिएट पंक्चर करना है तो दैट इज हम्म, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन हाँ। अबाउट दी सर्वाइकल। हम्म, नाउ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, राइट ब्रोंकस इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल। हाँ। ये क्वेश्चन इसलिए बार बार आता है देन लेफ्ट वन। सो इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इज टू राइट लोअर लोब। यहाँ पर एक एक्सरे ही दे दिया है कि दिस इज फॉरेन बॉडी, हम्म, राइट लोअर लोब, हम्म, डायरेक्टली राइट ब्रोंकस पे। एकदम। देन लेफ्ट ब्रोंकस एट T6 कैसा होगा? T4-5 पे डिवीजन होगा, लेफ्ट ब्रोंकस एक लेवल नीचे आ गया, T6 पे लेफ्ट ब्रोंकस आया। लेफ्ट ब्रोंकस इज लिटिल बिट, दिस इज लेफ्ट ब्रोंकस एट T6। T4-5 पे डिवीजन हुआ, लेफ्ट ब्रोंकस अगर देखना है तो इट विल बी एट T6। तो यहाँ एंड पर क्या था राइट ट्रैकिया का? एंड राइट ब्रोंकस एट। तो शायद वो राइट ब्रोंकस जो है वो हम्म, यहाँ पर मार्किंग नहीं दिया, बट वाइडर शॉर्टर वर्टिकल देन द लेफ्ट वन। सो इनहेलेशन T6 पे ही होना चाहिए। T4-5 पे डिवीजन हुआ तो एक ठीक। स्टेप नीचे जाएगा वो भी। ठीक है। तो हमारे कैसे थे लेवल्स? C6 पे स्टार्ट हुआ, T4-5 पे डिवाइड हुआ, और T6 पे ब्रोंकस का लेवल आ गया। हम्म, ओके, हम्म, नाउ दिस इज अबाउट लंग्स। नाउ राइट लंग इज फॉर्म्ड ऑफ 3 lobes। हम्म, राइट इज 3 lobes, 1, 2, 3, and left has got 2 lobes, हम्म। superior one and two only. Hmm? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट लोब हैज थ्री Yes, लंग्स, थ्री लोब्स, और right lung 3. एंड टू फीचर्स। Yes, एंड one is ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछेगा। थ्री लोब्स, बराबर है। टू फीचर्स एंड 10 सेगमेंट्स। टू लोब्स, Yes, वन फीचर एंड 9। 219, 3210। 3 200। lobes, 2 fissures, and 10 segments. Okay, हाँ। दो 2 सौ lobes, 219, 3210। 2 lobes, 1 हाँ, fissure, 9। हाँ, ये है आपका फिगर। हाँ, तो इसमें एक वन इज हॉरिजॉन्टल and हाँ, another is oblique fissure. These are हाँ, the two fissures. हाँ। इसमें क्या है? सिर्फ oblique fissure है। ओके, अब ये हो गया वन oblique fissure, देन फॉर्म 9 segments, ऊपर 10 segments है। इसमें हो गए 10 segment, इसमें हो गए 9 segment, इसमें हो गया 2, इसमें होगा 1, इसमें 3 lobes, इसमें 2 lobes। हम्म, फिशर है बीच वाला फिशर, पहला वाला लोब्स, लास्ट वाला सेगमेंट, LFS, लोब्स फिशर सेगमेंट। तीन राइट 32 राइट 10 में लोब्स, फिशर सेगमेंट, LFS। ठीक है। राइट 3210 और 219 राइट में ज्यादा है। हम्म, राइट में लोब्स एक बढ़ के लोब है, और फिशर बढ़ के है एक लोब की वजह से। और एक सेगमेंट ज्यादा है। ठीक। इधर है 2-1-9। 219। ठीक और है। ये एक जो लेवल आता है अभी लंग्स का, जो लेवल एंटीरियरली मिड क्लाविकुलर, इफ यू सी मिड क्लाविकल मिड एक्सिलरी, ये पॉइंट है मिड क्लाविकल। हाँ, हाँ। तो इसको जब लाइन स्ट्रेट खींचोगे तो हम्म, अब ये शुरुआत होता है। ये रिप्स अगर काउंट करोगे तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका 6, इधर साइड में 8, और पीछे जाता है 10। हाँ, लंग का अमित भाई एक तो 10। बात बोले। हम्म, ये देखो, लंग और प्लूरा जब देख रहे हो कितना अच्छा रेशियो है। देखो, देखो सिर्फ याद और रखना है कि मिड क्लैविकुलर से शुरू होता है, मिड एक्सिलरी जाता है, फिर पोस्टीरियर। 6, 8, 10, 8, 10, 12। माशाल्लाह, बस कितना अच्छा सल है। 6, 8, 10। 10, और दूसरा वाला है दो 8। दो नंबर नीचे, हाँ, हाँ। 8, 10। 10, 12। दो बस। सेंटीमीटर, दो उसका
दो स्पेस नीचे हो जाता प्लूरा। तो ये जो स्पेस है दो दो स्पेस का प्लूरा है। 6 8 10, हम्म, 6 ध्यान में रहेगा, 6 खत्म होगा, फिर एकदम। 6 खाली स्टार्ट करने वाला 6। हम्म, ठीक है। एक्सट्रिंसिक अब ये पाथवे। 12, एक्सट्रिंसिक 12 11 9 8 10। और अगर 9 8 10 इंट्रिंसिक 3 7, 10। 3 7 10 डायरेक्ट। हम्म, और वारफरिन हो गया 2 7 9 10। 2 7 9 10। और हेपरिन हो गया 2 9 11 12। 2 9 11 12। हाँ, और विटामिन के और वारफरिन एक जैसा है। एक सेम है, सेम। प्लेटलेट का कहानी ब्लीडिंग के साथ है, बीटी के साथ है। विटामिन राइट। के का कहानी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ। यस। वॉन विली ब्रांट और हेमोफीलिया ए का सब कहानी फैक्टर 8 के साथ है। वॉन विली ब्रांट राइट। और हेमोफीलिया ए दोनों का ही एपीटीटी बढ़ा हुआ रहता है, तो पकड़ेंगे कैसे? वॉन विली ब्रांट का ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ा रहता है। बीटी भी ज्यादा है। हाँ, राइट। हम लोग को थोड़ा ये करना पड़ेगा ना, नहीं तो सब भूल जाएंगे। नहीं नहीं, हमको बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमको फिर से एक बार रिवाइज सारी चीजें और, करना जरूरी है जब भी। नहीं, हम लोग करेंगे। अमित भाई, एक साथ है, यस। इंशाल्लाह करेंगे। सुनो ना, ये जो यस। चैप्टर ना थोड़ा इसका एक तो हम्म। स्ट्रेटेजी है। इसका एक एक शब्द उठा के मार देता है। बराबर है। हाँ, बराबर है। ये देखो कितना इतना इंफॉर्मेशन है इसमें कि हम लोग को बहुत हम्म। गौर, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। चलो। यस। पिक्चर्स में ही सब दे दिया है, वर्ड्स पढ़ना नहीं है ज्यादा। हाँ। सर्जिकल पॉइंट्स क्या है? स्टैब ऑन बैक एट लेवल ऑफ राइट एट। अब देखो, दिस इज बैक एंड दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। हम्म। तो राइट एट स्पेस कॉज इंजुरी टू राइट लोअर लंग। तो इफ यू सी, स्पेस निकालना है अगर इसमें राइट एट, तो हम्म। अपना क्या था? पोस्टीरियरली ये जो लेवल है अपना, बैक में 10 तक चले जाता है, 10 तक है हाँ। लंग्स, और प्लूरा आ जाता है 12 तक। तो हम्म। एट स्पेस में अगर इंजुरी होती है तो इट हैज टू इंजोर राइट लंग। तो ये दिस इज द एट स्पेस बैक। हम्म। ओके। हम्म। तो राइट लंग, लोअर लंग इंजोर होगा। स्टैब एट लेफ्ट फिफ्थ मिड क्लेविकुलर लाइन। सेकंड पॉइंट देखो, stab at left fifth mid clavicle line are directed lateral affect left lung. हाँ। Left fifth, left fifth mid clavicular. So you have to see this side. This is the left one, हाँ। and this is the mid clavicular line, and that too only on the fifth space. Now, what is the space? If you see like this, इसमें जो ये है, this is second rib, second, third, फोर्थ रिप, हम्म। एंड रफली दिस इज फिफ्थ। तो इसका ये फर्स्ट रिप जो है, फर्स्ट सेकंड के बीच में 1 2 3 4 5, हम्म। 5 रिप के फिफ्थ रिप मिड क्लेविकुलर में अगर वो होगा तो इट विल इंजोर डायरेक्ट एंड डायरेक्टली अफेक्ट lateral लेफ्ट लंग। lateral लेफ्ट, aspect of left lung. यस, लेफ्ट लंग। हम्म। तो हम्म। राइट एंड लेफ्ट लंग का इंजुरी तो सीधे सीधे उसके इंटरकोस्टल स्पेस के मार्जिन के अंदर अगर होगा तो इट विल डेफिनेटली इंजोर लंग। हम्म। ओके। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि लेफ्ट मिड क्लाविकुलर आ गया तो वो लंग को कर रहा है, नॉट द हार्ट। क्योंकि नहीं। मिड क्लाविकुलर मींस डायरेक्टेड लैटरली, हाँ, डायरेक्टेड लैटरली, तो लेफ्ट लैटरली। लंग। हम हम क्या सोचोगे कि लेफ्ट फिफ्थ मिड क्लैविकुलर लाइन तो हार्ट स्टर्नम से के आगे। बाजू में है। हाँ, आगे होंगे, जब हार्ट देखेंगे ना, जो उसके इंजुरीज में देखेंगे तो स्टर्नम के साइड से है। और ये जो दिखा रहा है कि दीज इंजुरीज आर मिड क्लैविकुलर। मिड क्लैविकुलर मींस इसको ऐसा देखोगे तो दिस इज द क्लैविकुलर पॉइंट। तो ये पॉइंट हार्ट के बाजू चलेगा, अभी दूर होगा। दिस इज स्टर्नम। तो हार्ट इज समथिंग नियर टू दिस वन ओनली। तो लंग्स इंजुरी होता है मिड क्लेविकुलर में, लेफ्ट साइड में। इफ यू स्टैब इन द मिड क्लेविकुलर पॉइंट, लंग्स इंजोर होता है। ये रखना है अभी ध्यान में बस। ठीक है। और ये जो इंसिजन किडनी के लिए लेते, लॉयन इंसिजन कॉज इंजुरी टू प्लूरा,
नीचे जो इंसिजन लेते हैं निमोथोरैक्स होता है कभी कभी, ये लॉइन इंसिजन इज ऑन द बैक साइड, इस स्पेस में रहता है लॉइन इंसिजन। तो यहाँ कभी बढ़ गया तो ये प्लूरा इज इंजर्ड। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट इन प्लूरल इफ्यूजन क्या है बेसिक? एक्सुडेट, एक्सुडेट infection and malignancy, these are the two important causes, infection, malignancy, and transutate is because of heart failure or cirrhosis। ये दो ही पॉइंट ध्यान में रखो। प्रोटीन्स, एक्सुडेट में प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन्स प्लूरल एंड सीरम प्रोटीन रेशियो, ये बहुत इट इज इंपॉर्टेंट है अमित भाई। हम्म इसका एक्सुडेट मतलब इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंसी, एंड ट्रांसुडेट यस, लिवर हार्ट एंड सिरोसिस, लिवर। हार्ट फेलियर। तो और दिस एक्सुडेट में प्रोटीन इज ज्यादा है। प्लूरल डिवाइडेड बाय सीरम, सीरम इज मोर देन 0.5 और वही लेस देन प्लूरल एंड सीरम इज लेस देन 0.5, मींस प्लूरल फ्लूइड के अंदर देर इज मोर प्रोटीन एज कम, मतलब ज्यादा है। 0.5 इज द मार्किंग लेवल, उसमें अगर इफ इट इज मोर देन 0.5 दैट इज प्लूरल एक्सुडेट and pleural LDH। Second thing is taken is LDH. LDH. This is the another thing. One is protein and second is LDH. This is protein and LDH. एलडीएच रेस रहता है ना। Exudate may be 0.6, more than 0.6 है। LDH is more than 0.6, it is exudate, and protein is more than 0.5, it is exudate। और ये कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? प्लूरल फ्लूइड वर्सेस सीरम। तो प्लूरल फ्लूइड में प्रोटीन और एलडीएच ये दो बढ़ता है तो दैट इज एक्सुडेट, इसका 0.5 है, इसका 0.6 है फिगर, ठीक है। LDH is significant because of seminoma। ओके ओके देखो सेमिनोमा में अल्फा फिटोप्रोटीन HCG सब नॉर्मल रहता है। सेमिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर ऑफ मेल्स, ठीक है। ओके उसमें ओके LDH रेज रहता है। यस। हम ऑब्लिक लोग फिशर रोलिंग में से प्रेजेंट, करते रहेंगे हमिद भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये व्हाट आई एम, ये जो मार्किंग्स है और आई एम रिकॉर्डिंग दिस, ये रिकॉर्ड होगा ना तो हमको फिर बाद में नेक्स्ट टाइम वी विल जस्ट हैव टू सी दिस एंड डू दैट। इतना सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बैठे बैठे खाली टाइम में रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे कि व्हाट वी आर डिस्कस ड्यूरिंग दिस टॉपिक। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आज हमको 3 घंटे लग रहे तो इट विल टेक ओनली हाफ एन आवर टू और 1 आवर। तो सेकेंड थर्ड जो रोटेशन रहेगा ना इट विल टेक लेस टाइम, है कि नहीं? एकदम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Now, regarding oblique fissure, it is present on both transverse fissure फिर right में है। It is level of oblique fissure, ये को इसमें दिया है, passes from T4 vertebra posterior। अब यहाँ पर if you see ये दिया है oblique, this one is oblique fissure। तो posteriorly इसका लेवल है 4th thoracic T4 पीछे, posterior, and crosses 5th rib at the mid axillary line। मिड एक्सिलरी में जब आता है यहाँ पर 5th इंटर ये होगा, crosses 5th rib and mid line to 6th rib it mid clavicular, आगे आके 6th rib आ गया। इसमें क्या दिया ऑब्लिक फिशर के 3 पॉइंट्स 4 5 6 है पीछे, लेकिन T4 बोल तो वो T4 से शुरू है, 4 5 6 ऑब्लिक इज, देख लिया आपने अब 4, फिफ्थ रिब सिक्स्थ रिब, यस 5th rib 6th rib, दिस इज अबाउट ऑब्लिक फिशर। 4 5 6 पीछे 4th, बीच में 5, आगे 6। नाउ दिस इज अबाउट ऑब्लिक फिशर। So the superior lobe mainly anterior while lower lobe mainly posterior। तो if you see यहाँ पर अगर देखोगे सुपीरियर लोब का दिस पार्ट इज ये येलो पार्ट है, येलो इज सुपीरियर लोब,
एंड पिंकिश जो है दैट इज पोस्टीरियर। तो ऑब्लिक फिशर ऐसा आने की वजह से सुपियर लोब एंटीरियर है और इंफीरियर लोब पीछे बैक साइड में। ये ऑब्लिक फिशर है ना ऐसा, ठीक है। नाउ ये अगर क्वेश्चन आया सुपियर लोब इज मोर एंटीरियर एंड इंफीरियर लोब इज मोर ओवर ऑन द बैक साइड, देन हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट ओनली ऑन द राइट साइड, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। अब ये ऑब्लिक फिशर इज ऑन द बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का ये हो गया। हॉरिजॉन्टल फिशर इज ऑन द राइट, पासेस फ्रॉम द फोर्थ। अब हॉरिजॉन्टल फिशर जो है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल फिशर, हाँ, दिस इज एट द इसमें एक तो फोर्थ क्वेश्चन हो था गया। पास्ट टेस्ट का कि दोनों हाथ उठा के रहने से दोनों हॉरिजॉन्टल फिशर इज द ओनली लैंडमार्क व्हिच इज इक्वल इन बोथ साइड्स। मेरी बात समझ गए? दोनों हाथ जैसा ऊपर में उठा के रखा है, then ओके then horizontal fissure is only the landmark which is continuous in both the lungs. ओके ओके, वो वैसे हॉरिजॉन्टल फिशर इज ओनली ऑन द राइट साइड। ओके, हाँ, ये वाला हॉरिजॉन्टल फिशर है, हाँ, दिस इज ओनली ऑन राइट साइड। लेफ्ट साइड में देयर इज ओनली ऑब्लिक फिशर, तो दिस इज एट द फोर्थ स्पेस। अगर हाथ ऊपर करते हैं तो ये फोर्थ स्पेस पे आ गया। तो वो बता रहे हैं आप। ठीक है। नाउ T4, मिडिल लोब, T4, rib 5, rib 6, that is the oblique फोर fissure. ऑब्लिक फिशर इज 4 5 6 ऑब्लिक, हाँ, एंड oblique. हॉरिजॉन्टल इज 4। अच्छा, और एक तो चीज सुन लो, जो आपका 3210 LFS राइट लंग, यानी कि लोब 3 ठो, हाँ, फिशर 2 ठो और सेगमेंट 10 ठो, यस, और लेफ्ट लंग का हो गया 219, 2 ठो 219, लोब, एक ठो दो फिशर, लोग, एक ठो फिशर 9 ठो सेगमेंट। यस। और उधर है आपका लंग का जो आपका क्या बोलते हैं, लेवल, सरफेस मार्किंग, सरफेस मार्किंग 6 से शुरू हाँ, करना है, 6 8 10, 6 8 8 10, 10। 8 10 12 लंग 6 से और स्टार्ट कर कीड़ा। दिए कि, हाँ 6 से स्टार्ट कर दिए, 12 पे एंड हो जाता, वो डबल हो जाता। हाँ, बस दो 6 दो बढ़ा 8 देना। 10, 8 10 12, राइट, ठीक है, यस। एकदम। चलो, अब मिडिल लोब सरफेस एनाटॉमी प्रेजेंट ऑन राइट लंग ओनली। अब ये मिडिल लोब जो है ये सिर्फ राइट में है, ये मिडिल वाला। हाँ, लेफ्ट में दो ही लोब है। हाँ, पहले क्या बताया कि सुपियर लोब एंटीरियर ज्यादा है, इंफीरियर लोब पोस्टीरियर ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए जो कोविड में पेशेंट्स को प्रोन्स होने के लिए जो बोलते थे, पोस्टीरियर लोब में जो कलेक्शन होता था, लंग्स का एक्सपांशन डिफिकल्ट, तो उसका पोस्टीरियर लोब इज बैक बैक साइड में ज्यादा है ना। तो पोस्टीरियर लोब में से जो प्लूरल इफ्यूजन नीचे जो होता है या कलेक्शन हो रहा है इसका, तो व्हेन यू स्लिप ऑन द प्रोन पोजीशन, तो वेंटिलेशन फ्रीली होता है, पोस्टीरियर लोब के अंदर कलेक्शन नहीं होना बोल के, ठीक है। ठीक है, So middle lobe surface anatomy present on the right lung, middle lobe between the oblique and horizontal fissure from fourth to sixth। तो ये हमने पहले ही देख लिया है, फोर्थ रिप पे ये स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फिशर फोर्थ रिप पे है, और ये ऑब्लिक फिशर सिक्स पे एंड हो रहा है, तो फोर्थ से सिक्स के बीच में रहने वाला है मिडिल लोब। एकदम। 4 और to राइट 6। राइट लंग में लेकिन 2 ठो फिशर है, हाँ राइट लंग में, ये राइट लंग में दो है, लेफ्ट राइट, में मिडिल लोब नहीं है। एक नहीं, और इसमें एक एक है, लेफ्ट में हम्म, एक है। and 4 to 6th rib at the mid clavicular line। 4 to 6th, ये mid clavicular यहाँ रहेगा आगे, इसलिए 4 to 6th है। and its apex at the 6th intercostal space mid axillary line। ये जो आप देखोगे मिड एक्सिलरी लाइन, ये इसका एपेक्स, अब ये आगे से 6 तक है, इसका एपेक्स इधर रहेगा, मिड एक्सिलरी के 6 पे ही रहेगा, हम्म, ठीक है। हम्म, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये रहता है हाइलम। हम्म। नहीं, कुछ हाइलम ऑफ द, इसका तो फेवरेट क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। Which nerve is anterior in both the hilum?
phrenic. Which Phrenic nerve? nerve दोनों में Which nerve posterior is is vagus. posterior to both the hilum? Vagus. वेगस हाँ, फ्रेनिक आगे है एंड वेगस पीछे है. ठीक है, ये बहुत ठीक है. हाइलम में कंटेंट्स. तो अब क्या रहेंगे हाइलम के सुपीरियर पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन दो है, सुपीरियर एंड इंफीरियर. और पल्मोनरी आर्टरी एक होती है. अपना जो पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट राइट वेंट्रिकल से आके इट इज गोइंग इनटू द लंग. ठीक है. राइट वेंट्रिकल से, है ना. ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा, इट इज गोइंग टू पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज गोइंग टू लंग्स. और लंग्स में से जो फ्रेश ब्लड है तो उसमें से पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन्स, इट इज कमिंग फ्रॉम टू ऑन दिस साइड, टू ऑन दिस साइड. ये दोनों ओपन होते हैं लेफ्ट एट्रियम में. फ्रेश ब्लड, है ना, लेफ्ट एट्रियम में. तो पल्मोनरी वेन जो है उसको अगर देखोगे तो राइट साइड में दो वेन्स है और लेफ्ट साइड में दो वेन्स है, सुपीरियर इंफीरियर. तो वेन, पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड. ठीक है. इसलिए पल्मोनरी वेन यहाँ जो फिगर में दिखा रहा वो रेड कलर में दिखा रहा, और पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें डीऑक्सीनेटेड है. ये राइट हार्ट से जा रहा ना ऑक्सीजनेशन के वास्ते. इसलिए इफ यू सी दिस फिगर, pulmonary artery, this is shown in the blue color. Okay. और pulmonary vein is in the red color. pulmonary vein में क्या है, ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा. तो अब हाइलम में से क्या क्या आएगा, दोनों हाइलम में से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन रहेंगे. वेन्स तो दो दो हो गए. फिर ब्रोंकस आएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में अगर ब्रोंकस देखोगे तो राइट साइड का कैसा है मामला, ट्रैकिया और ब्रोंकस का. ये राइट साइड ऐसा है, लेफ्ट एंड राइट. तो इस लेवल पे अगर कट करके देखोगे तो राइट में दो ब्रोंकस देखोगे, लेफ्ट ब्रोंकस लंबा है इसलिए लेफ्ट में एक ही दिखेगा, है ना. तो ये जो डिफरेंस है हाइलम का, दिस इज, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, राइट अपर एंड लोब ब्रोंकस इंटरमीडिएट दो दिख रहे. ठीक है. और ये देख रहे ओनली लेफ्ट मेन, क्योंकि ब्रोंकस ट्रैकिया जो ऐसा आता है, राइट इज मोर शॉर्टर एंड वर्टिकल और लेफ्ट इज हॉरिजॉन्टल और लॉन्ग. तो ये शॉर्टर एंड वर्टिकल होके ये इमीडिएट डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये आगे जाके डिवाइड हो रहा है. इसलिए जब हाइलम में देख रहे हो, हाइलम बोलते ये होगा, हाइलम बोलते ये होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यू आर सीइंग ओनली वन ब्रोंकस इन द हाइलम. और दोनों साइड में देयर यू आर सीइंग टू वेन्स मीन्स दे आर टेकिंग ब्लड फ्रॉम द, दो वेन्स आ रहे दोनों साइड से टू फॉर्म पल्मोनरी वेन, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज. तो ये होगा लेफ्ट साइड का. अगर देखोगे वन ब्रोंकस, टू वेन्स एंड वन आर्टरी, दिस ये होगा. और राइट साइड का जब देखोगे, राइट साइड का टू ब्रोंकस, टू वेन्स एंड आर्टरीज आर आल्सो मल्टीपल, क्योंकि वो राइट पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांचेस है. ठीक है. टू ब्रोंकस, टू वेन्स, और वहां एक ब्रोंकस. ब्रोंकस में डिफरेंस है खाली. ब्रोंकस में यू सी एट द हाइलम टू ब्रोंकस ऑन द राइट साइड व्हाइल वन ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड. ये मेन डिफरेंस है दोनों के उसमें. और आपने जो बताया ये फ्रेनिक नर्व इज एंटीरियर ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है. फ्रेनिक नर्व इज एंटीरियर एंड वेगस नर्व इज पोस्टीरियर. यही है इसका एक क्वेश्चन. फ्रेनिक नर्व का ही आता है ज्यादा करके. अगर बाय चांस ब्रोंकस का आ गया तो राइट साइड में दो ब्रोंकस है, इतना ही अपने ध्यान में रखना है. अब ये चीजें देखो, इसमें क्या क्या दिया, कंटेंट पल्मोनरी वेन. फिर ये अगर एंटीरियर पोस्टीरियर सब करेंगे, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, मोस्ट एंटीरियर is pulmonary vein, and
inferior pulmonary vein is most inferior. हम्म Hmm? हम्म Superior pulmonary vein. अब ये this is the anterior side. Hmm? हम्म And this is the posterior side. This हम्म is anterior. हाँ? This हम्म is posterior. ये important है क्योंकि ये जो देख रहे हैं राइट साइड में. Now this we are seeing on the राइट साइड राइट. ये सब राइट है. ये राइट राइट हम्म राइट. हम्म तो राइट साइड के इसमें जो इंटर हो रहा है, हम्म यू सी एंटीरियर सुपीरियर पल्मोनरी वेन है ये. सबसे एंटीरियर में सुपीरियर पल्मोनरी वेन सबसे आगे, और सबसे नीचे लोअर मोस्ट इंफीरियर मोस्ट क्या है? इंफीरियर पल्मोनरी वेन. हम्म तो पल्मोनरी वेन ही दोनों एंटीरियर में सुपीरियर है और इंफीरियर में पोस्टीरियर है. तो ये जगह ऑक्युपाई कर लिए इन्होंने. ये एंटीरियर मोस्ट, इंफीरियर मोस्ट. ठीक है. हम्म और सबसे पीछे इसके अंदर क्या है फिर? कोई दोनों भी उसमें अगर देखोगे, दोनों भी इसमें इंफीरियर क्या है? इंफीरियर पल्मोनरी वेन. और एंटीरियर है सुपीरियर पल्मोनरी वेन. हम्म तो पल्मोनरी वेन हैज ऑक्युपाइड द प्लेस इंफीरियर एंड एंटीरियर. फिर ब्रोंकस इज मोस्टली पोस्टीरियर. तो यहाँ देख लिए ये एंटीरियर होगा, ये ब्रोंकस पोस्टीरियर होगा. इसी में इसमें भी देखोगे ब्रोंकस पीछे है. तो उसमें दो तो है इसमें से इसमें एक देखो, तो है यस उसमें दो है इसमें एक है. हाँ आर्ट पल्मोनरी वेन जो फ्रेश ब्लड लाता है लंग से, वो आगे है, ब्रोंकस पीछे है. और पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी अगर देखोगे इसमें भी पल्मोनरी आर्टरी विच इज कैरिंग, वो ऊपर है. इट इज ऑन द अपर साइड. दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. इसमें भी ये पल्मोनरी आर्टरी है. ये अरेंजमेंट बोल रहा हूं मैं. देख लिया आप. हम्म पल्मोनरी आर्टरी ब्लू में क्यों दिया? दिस इज कैरिंग ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टूवर्ड्स लंग्स. तो सबसे ऊपर पल्मोनरी आर्टरी सुपीरियर मोस्ट. और सबसे नीचे है पल्मोनरी वेन, वो भी उसमें का इंफीरियर पल्मोनरी वेन. एंड सबसे आगे जो है दैट इज सुपीरियर पल्मोनरी वेन. और पीछे है ब्रोंकस. यही एकदम पिक्चर आएगा ये साइड भी. पल्मोनरी आर्टरी जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के पार्ट्स है ऊपर. पल्मोनरी वेन जो है दैट इज लोअर मोस्ट एंटीरियर एंड ब्रोंकस ऑन द पोस्टीरियर साइड. हम्म तो अब एक बात देख लो, ब्रोंकस पीछे है. फ्रेश ब्लड कैरी करने वाला पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी हाँ आर्टरी मीन्स लंग से हार्ट में जाने वाला. ये एक अपने पास कंफ्यूजन होता है. आर्टरी बोलते हम क्या सोचते, द वेसल गोइंग आउट ऑफ द हार्ट. बट दिस इज रिवर्स. लंग से हार्ट में आने वाला दैट इज आर्टरी. एंड हार्ट से लंग में जाने वाला दैट इज वेन. है कि नहीं? हम्म यहीं पे एक जगह रिवर्स है. बाकी इसमें कैसा है? फ्रॉम हार्ट, जो भी हार्ट से कोई भी दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, आइदर टू किडनी, आइदर टू ब्रेन, ऑल दीज वी कॉल्ड एज आर्टरीज. हम्म बट फ्रॉम हार्ट द वेसल विच इज कैरिंग ब्लड टू lungs that is called as vein. हम्म आ गया? समझ गया? ध्यान में आ गया ये? और लंग से एकदम हार्ट एकदम में आने, लंग से हार्ट में आने वाले को हम जनरली बाकी सब ऑर्गन्स में वेन बोलते, बट हियर वी कॉल इट एज ए आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी. हम्म ये चीज ठीक है. पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी वेन जो है वो रेड है और नीचे है. हम्म ठीक है. हम्म ये कंफ्यूजन हो सकता कहीं पे भी. अपन फिर से इसको कभी रिवाइज कर लेगा. अब ये क्या है? रिलेशन. फ्रेनिक नर्व आपने बताया जैसा ऑलवेज एंटीरियर रहता. हम्म वेगस नर्व पोस्टीरियर रहता. इसोफेगस, is ये most क्वेश्चन बहुत बड़ा posterior था. यस इसोफेगस, दिस इज आस्क्ड. सबसे पीछे क्या है? इसोफेगस है. most यहाँ posterior देखोगे, most posterior उसके यहाँ बाद देखोगे ये. एजाइगोस देखो हाँ, राइट और लेफ्ट का दोनों अलग है. अब अजाइगस वेन बिहाइंड द आर्च अबाउट द राइट लंग. अगर राइट लंग ध्यान में आ गया तो पहले अजाइगस आना चाहिए. और लेफ्ट आ गया तो यू शुड गेट aorta. अब देख लो, डिसेंडिंग aorta बिहाइंड द हाइलम एंड आर्च पासेस अबाउट द हाइलम ऑफ लेफ्ट. लेफ्ट देखोगे तो लेफ्ट साइड में क्या है? aorta है. राइट साइड में क्या है? अजाइगस एजाइगस है. यानी और दोनों बिहाइंड में में इसोफेगस. लेफ्ट बिहाइंड बिहाइंड राइट में है एजाइगोस और बिहाइंड लेफ्ट में है आर्च ऑफ आयोटा.
और आर्च ऑफ aorta ऊपर है एंड डिसेंडिंग aorta नीचे है। ये देखो कि ये पूरा आर्च ऊपर है एंड देन डिसेंडिंग नीचे है। तो व्हेन यू सी, एक ध्यान में रखिए कि ऑल दी ब्लड वेसल्स, मेजर आर्च जो है वो ऊपर जाके इट गोज ऑन द लेफ्ट साइड एंड गोज डाउन, एंड वेन इज ऑलवेज ऑन द राइट। इंफेरियर वेना कैवा, सुपियर वेना कैवा, दिस इज ऑलवेज ऑन द राइट। सो राइट में अजाइगस वेन आ गया और लेफ्ट में आउट आ गया, पोस्टीरियरली पीछे। ये कंफ्यूज करता है। और नर्व्स में अगर देखोगे तो वेगस वी, वी इज ऑलवेज बिहाइंड, एंड एफ पी, पी इज फ्रेनिक, फ्रेनिक, Is फ्रेनिक इज always ऑलवेज anterior. एंटीरियर। ये कंफ्यूजन कैसा आप दूर करना, कभी कभी ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वेगस आगे है कि पीछे है? तो फ्रेनिक नर्व जो है इट इज सप्लाइंग टू लंग्स, हार्ट, सबको। और वेगस सप्लाई कर रहा है ईसोफेगस के साथ, जाता है पैरेलल नीचे। तो ईसोफेगस कहाँ है? एकदम पीछे है ईसोफेगस। Posterior most structure. ईसोफेगस इज पोस्टियर मोड। तो वेगस इज ऑलवेज accompanied विद द ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेजियल हाइटस के बाजू से वेगस जा रहा और स्टमक के पास जो वेगस की वेगोटॉमी करते हैं, दैट्स व्हाई ईसोफेगस इज पोस्टीरियर, वेगस इज पोस्टीरियर। ठीक है? Vagus is posterior, phrenic is anterior. Posterior-most is esophagus. On right side, you get That posteriorly azygous vein, and left side you get aorta. ठीक है? और bronchus is also, और हाइलम के अंदर ही दिस descending इज, aorta behind the hilum and its arch passes above the hilum in left lung. यस। ठीक है, ठीक है. अब सर्जिकल पॉइंट क्या है? स्टैब इंफीरियर टू हाइलम नियर टू इंफीरियर पल्मोनरी लिगामेंट में अफेक्ट लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। नाउ अब ये क्या दे रहा है? इंफीरियर स्टैब इंफीरियर टू हाइलम नियर टू इंफीरियर पल्मोनरी लिगामेंट। तो जो पल्मोनरी लिगामेंट है नियर टू इंफीरियर पल्मोनरी वेन, क्या है? इट इज ऑलवेज इंफीरियर, दोनों जगह पे इंफीरियर पल्मोनरी वेन, inferior pulmonary vein. So this is the, ये जो लिगामेंट है, दिस जो लिगामेंट जो आ रहा है ये, दिस इज इंफीरियर पल्मोनरी लिगामेंट। ऐसा इस तरह से पूरा हाइलम बन गया, एंड जो नीचे एक्सटेंड होता है दैट इज इंफीरियर पल्मोनरी लिगामेंट। दोनों जगह पे इट इज सेम थिंग, दिस इज इंफीरियर पल्मोनरी लिगामेंट। तो स्टैब अगर इस तरह से हुआ लोअर लेवल पे, तो चेस्ट inferior के सेंटर, pulmonary vein को हार्ट अटैक हो जाता है. यस, इसको अटैक होगा, तो इन दैट केस दिस कैन बी इंजोर्ड। तो इसमें इंफीरियर पल्मोनरी वेन मीन्स इट इज ए वेन कैरिंग फ्रेश ब्लड फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है? एकदम. अब ये होगा आपका मीडियास्टेनम। आपका डायग्राम एकदम एकदम मस्त है एकदम. हाँ. इसको अकेले पढ़ना नहीं होता था, ये अकेले इतना नहीं, ये टाइम नहीं देते अकेला हम होने लोग से को। सो जाएंगे हम लोग सब. सो जाएंगे और हम ये चीज को मिस कर दोगे। नहीं, अकेले अगर आज देखोगे भी ना, पता है आज दोपहर में नहीं हुआ तो हमको जैसा हाँ, बेचैनी से लग रहा था. यही है, करना ही करना है, ये छोड़ना नहीं, हम्म. उसके बगैर स्टडी ही नहीं है, अकेले कितना भी अच्छा, पढ़ लो। आप पे तो छोटा चीज पढ़ा दे रहा है, याद कर लेना. तुम आप लिख लो MSC. हम लोग सब MSC हम्म, करते हैं ना. हाँ, MSC. M फॉर मैक्सिलरी, S फॉर हाँ, स्टेपिडियल, C फॉर कैरोटिड. ठीक है, मैक्सिलरी, स्टेपेडियल एंड कैरोटिड। हो गया. ओके। इसके बाद नंबर 4 में लिखो राइट साइड, राइट साइड सबक्लेवियन, लेफ्ट साइड आयोटा. राइट सबक्लेवियन, एंड लेफ्ट आयोटा. लेफ्ट आउटा, और एक तो चीज लिखो पल्मोनरी वेसल्स. पल्मोनरी वेसल्स। हाँ, ये देखो मजेदार, देखो आयोटिक आर्च है ना. हम्म, ये aortic arch, right? आयोटिक आर्च का, आयोटिक आर्च 1 supplied by maxillary artery, aortic arch 2 supplied by stapedial, aortic arch 3 common carotid artery, aortic arch 4th is right subclavian left aorta, and sixth aortic, there is no fifth, sixth aortic artery
A sixth aortic arch is pulmonary vessels. ओके ओके, ये pharyngeal arches, pharyngeal arches. Mm-hmm. ओ, तो MSC, तो अभी एक बार बोल दो मुझे, M क्या है? M is Maxillary. फर्स्ट. हाँ. तो उसका क्या है? विच इज दिस MSC सप्लाई pharyngeal arch is from where? Aortic arch is maxillary का number 1. ओके, 1 वन. नंबर. अच्छा, स्टेपिडियल का है 2 नंबर. ओके, MSC एंड हाँ. 3 is हाँ, कॉमन कैरोटिड का है 3 नंबर. ओके. और 4 नंबर है राइट सबक्लेवियन लेफ्ट आयोटा. 4 का है, दोनों भी है. हाँ. और 6 का है पल्मोनरी आर्टरी. 6 is pulmonary artery. बस. 5 डिसअपियर हो जाता है, 5 नहीं होता है. ओके ओके, फाइन. नाउ ये जो है, दिस इज मीडियास्टेनम. चलो. इन इसमें क्या है? ये दिस इज द बहुत ये पूछा. इसमें ये लाइन ऑफ सेपरेशन पूछता है. दिस इज इसमें जो है सुपीरियर इंफीरियर. पहले तो कैसा है? सुपीरियर है, इंफीरियर है. सुपीरियर में एक ही है पूरा, ओके. और इंफीरियर में 3 पार्ट्स है. एंटीरियर, ए, मिडल एंड पोस्टीरियर. सुपीरियर एंड इंफीरियर का डिवीजन इज फ्रॉम, दिस इज द T4. दिस इज द T4. और एंटीरियरली मैन्यूब्रम स्टर्नम जो है, ये मैन्यूब्रम का जो ये रहता है T4 के लेवल पे, उसका ऊपर जितना होगा दैट इज सुपीरियर. और रिब उसकी बाउंड्री है ऊपर की, फर्स्ट रिब. रिब के ऊपर मीडियास्टेनम नहीं है. दिस इज द बाउंड्री ऑफ सुपीरियर. ठीक है. अपर बॉर्डर इज सुपीरियर इज द रिब, manubrium is the anterior, and T1 to T4 is the posterior, and this is the inferior border of superior mediastinum, line joining T4 to manubrium sternum. ये होगा superior. Now inferior is divided into anterior, middle and posterior. तो अब इसको हम क्या करते हैं? अपर मैन्यूब्रम अपोजिट T1 to mediastinum, अपर मैन्यूब्रम अपोजिट T2 T3, ये जो है T2 T3 दैट इज अपर होगा, ये सुपीरियर. देन स्टर्नल और ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन फ्रॉम स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुइस. दिस इज स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस, LUIS, एंगल ऑफ लुइस टू T4 पोस्टीरियरली. अपर बॉर्डर जो है ना, इट इज रफली T1 T2. एक मिनट ना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके. हेलो. हाँ. नहीं चालू है, क्यों? हो गया क्या? क्या बोले? ओके, चल ठीक है. ओके, ठीक. हाँ. हेलो. हाँ, तो सुपीरियर का जो है ना, इट इज अपर बॉर्डर ऑफ मैन्यूब्रियम. जब उसका लेवल देखोगे, मैन्यूब्रियम जो है, दिस इज मैन्यूब्रियम का अपर बॉर्डर टू T2 T3 बोलते हैं. T2 T3, दिस इज द लेवल अपर का. एंड sternal to transverse process. Then sternal or transverse thoracic plane divides mediastinum into superior, inferior, anterior, middle, posterior. ये देख लिया हमने. Now contents देखना है आप सुपीरियर के. सुपीरियर में क्या क्या है? तो he has given one mnemonic, T plus van T. बहुत इम्पोर्टेंट है. ये हम भूलते हैं बहुत बार. तो नाउ वी विल सी दिस. T is thymus, ये याद आ जाता, थाइमस सुपीरियर का. van T, VAN. So V is which vein? Superior vena cava. V is सुपीरियर वेना केवा. S, superior vena cava vein.
ए इज आर्च ऑफ एओर्टा। इसमें सभी छह, इसमें देखो आर्च ऑफ अओर्टा, इनोमिनेट आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ए वाले क्या क्या है देखो, ए वाले अब नाउ, ए इज आर्टरीज है पूरे, ए इज आर्च, सेकेंड इज कॉमन नर्व। कैरोटिड ले ली, इनोमिनेट आर्टरी छोटी है, सी सी ए ले लेते, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ओके, एंड लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये तीन तो याद रख लेते, वो इनोमिनेट आर्टरी इज वेरी स्मॉल। तो ए इज थ्री आर्टरीज, बिग आर्टरीज, आर्च ऑफ अओर्टा, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन। क्यों है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी? इट इज लाइक दिस, अगर हम ये देखोगे तो इसमें ओनली लेफ्ट सब क्लेवियन दिया है, राइट सब क्लेवियन नहीं है। क्योंकि ये जो आर्च ऑफ अओर्टा है, आर्च ऑफ अओर्टा, हम कहाँ पर फिगर देखोगे वो आर्च वाला, हाँ ये अगर फिगर देखोगे तो ये पार्ट जो है ये रफली यहाँ है। तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट वाली सबक्लेवियन देखोगे तो ये बहुत ऊपर जाती है, दोनों कॉमन है ना, राइट एंड सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड, इसलिए लेफ्ट क्या क्या था इसमें, कॉमन कैरोटिड। एक बात क्या है, लेफ्ट साइड में कॉमन कैरोटिड, सीसीए कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वो सेपरेट आते हैं आर्च ऑफ अओर्टा से। और राइट में क्या होता, इनोमिनेट आर्टरी है, मेरे ख्याल से राइट में इनोमिनेट आर्टरी बन के वो आगे जाके है। तो इसलिए लेफ्ट साइड का कहाँ सर्च करते हैं ये आर्च ऑफ अओर्टा और हार्ट का जो पिक्चर है आर्टरी का, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कैसा दिख रहा है आर्च, एकदम 100, ये क्या नंबर है, इफ यू सी दिस कॉमन कैरोटिड सबक्लेवियन, और ये मिल के आ रहे हैं। और कहीं फिगर है क्या इसका, राइट एंड लेफ्ट में क्या होता है, ये ऐसा है देखो, ये दिख गया, इफ यू सी दिस आर्च, ये हर बार मुझे कंफ्यूज होता था, आर्च इज लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, ठीक है। इसमें क्या है कि कॉमन कैरोटिड इज स्टार्टिंग फ्रॉम आर्च एंड सब क्लेवियन इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम आर्च, जबकि ऑन राइट साइड दिस इज इनोमिनेट कॉमन, ये जॉइन ये ते, इसको मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, ब्रेकियोसेफेलिक बोलते हैं क्या, फिर आगे जाके कॉमन कैरोटिड है, इट इज नॉट सेम ऑन द टू साइड्स, दिस इज कॉमन एक है। लेफ्ट साइड में देर आर बोथ द आर्टरीज स्टार्ट डायरेक्टली, इसलिए ये दोनों के दोनों सुपीरियर मीडियास्टेनम में ये पार्ट आ जाता है पूरा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन एंड आर्च, ठीक है। सुपीरियर मीडियास्टेनम के लेफ्ट साइड के तीनों पार्ट आ गए। यहाँ जो देखे आर्च ऑफ अओर्टा, कॉमन कैरोटिड लेफ्ट, लेफ्ट सब क्लेवियन, लेफ्ट लेफ्ट सबक्लेवियन, देखो लेफ्ट सब कॉमन लेफ्ट, कैरोटिड, ज्यादा लेफ्ट ही है देखो। लेफ्ट वाले चाहते लेफ्ट इनोमिनेट वेन, ये सुपीरियर वेना के अलग चीज है, सुपीरियर के नाम तो वेन्स में क्या था, सुपीरियर वेना क्या हुआ है, साथ में राइट एंड लेफ्ट इनोमिनेट वेन है, ये एक जैसा है, इनोमिनेट वेन राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। इनोमिनेट वेन बोलते हो उसको ब्रेकोसिफेलिक भी बोलते हैं, ये जो है ना दिस वन इज ब्रेकोसिफेलिक वेन, दिस वन, ये जो पहला है कॉमन ब्रेकोसिफेलिक, फिर वो आगे जाके एक्सटर्नल जुगुलर एंड सबक्लेवियन में जाता है। यहाँ पर भी देखोगे दिस इज ब्रेकोसिफेलिक, देन सबक्लेवियन एंड एक्सटर्नल इंटरनल जुगुलर, ये ऐसा है, ठीक है। नाउ अभी हमने आर्टरीज में क्या देखा है, आर्च ऑफ अओर्टा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, टू नर्व्स वेगस फ्रेनिक जो हमारे थे वो दोनों भी इसमें से चले गए। एन एन मीन्स दीज आर द नर्व्स, नर्व्स, एन जो है तो वेगस नर्व्स नर्व में एंड नर्व। वेगस
and phrenic. And again last वाला T है तो that is tubes. ट्रेकिया This is tubes. हाँ Tubes में trachea, Trachea and esophagus, thoracic. thoracic duct Trachea, esophagus and and thoracic duct. thoracic duct. So तो सुपीरियर में T वैन T. T T vein. is first is thymus. ठीक है. वैन में वेन्स हो गए. वेन में सुपीरियर वेना क्यावा, राइट एंड लेफ्ट इन नॉमिनेट वेन्स. वेन्स है ये पूरे. और लेफ्ट साइड के जो भी है आर्च ऑफ अorta, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हो गए मेजर 3 आर्टरीज. और एन से हो गए 2 नर्व, स्फेनिक नर्व एंड वेगस नर्व. देन लास्ट वाला टी जो है ट्यूब्स, इसोफेगस, ट्रेकिया एंड थोरैसिक डक्ट. ठीक है. सुपियर मीडियास्टेनम कंटेंट्स ये बताओ दिखा दिया उसने. T टी vein. वैन टी, या आप बोलिए आप. टी वैन टी. T vein T फर्स्ट है थाइमस और वैन Yes. वैन हो गया आपका. अच्छा टी वैन टी Veins. नर्व हो गया वेगस फ्रेनिक और टी हो गया आपका लास्ट का जो टी है ट्यूब्स थोरेसिक डक्ट और और वेन हो गया आपका वेसल्स जो है लेफ्ट साइडेड सीसीए, लेफ्ट साइडेड हाँ. सबक्लेवियन. अच्छा यस. नर्व्स हो गया तो वेगस और फ्रेनिक हम्म, और ट्यूब्स हो गया आपका ट्रेकिया इसोफेगस. यस. चलो. चलो इतना तो हो गया क्लियर. हम्म, During median sternotomy, when you are cutting the sternum during coronary artery bypass, thymus is the first structure to encounter. ये क्वेश्चन आता है? बहुत बड़ा था. तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं उसमें सुपियर वेन आता है, सबक्लेवियन आता है. मैंने देखा आंसर थाइमस भूल जाते हैं. थाइमस इज द मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट. यही होता है स्टर्नोटॉमी करे कि पहले थाइमस आता है. क्वेश्चन इसमें से ही बनते शायद लोग है तो ये अगर पढ़ेंगे तो डायरेक्ट थाइमस ही लिखेंगे, फिर इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है. हमको लगता है यही किताब से क्वेश्चन बनता है. एक्सटर्नल एंगल, लोअर पार्ट ऑफ मैन्यूब्रम जो है, मैन्यूब्रम ऐसे जो मैन्यूब्रम है उसका दिस पार्ट इज स्टर्नम, स्टर्नल एंगल. फिर हाँ. ऐसा स्टर्नम है, दिस इज स्टर्नल एंगल, दिस इज टॉप ऑफ दिस एंड दिस इज बॉडी ऑफ मैन्यूब्रम. स्टर्नल एंगल का बहुत क्वेश्चन आते हैं. उसका लेवल क्या है? साइट फ्रॉम कोस्टल मार्जिन ऑफ सेकेंड रिब एंटीरियर टू T4. तो अब यहाँ से इसका सेकेंड रिब यहाँ अटैच होती है. सेकेंड रिब और पीछे इसके लेवल पे T4 T5 है. मेन T4 ही चाहता ज्यादा करके. बैक साइड में क्या है? एक्सटर्नल एंगल T4 है और रिब आती है सेकेंड रिब सेकेंड, T4 वर्टिब्रा. एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे स्ट्रक्चर एट दिस लेवल क्या क्या है आप इसमें देखो. azygos to SBC, beginning and end of arch of aorta, bifurcation of pulmonary artery, ligamentous arteriosus, bifurcation of trachea, thoracic duct crosses the posterior to left of esophagus, deep cardiac plexus, superficial cardiac plexus. तो ये सब दिया उसने एक्सटर्नल एंगल के सारे. एक्सटर्नल एंगल तो हमने सबसे पहले देखा था ट्रैकिया का जो डिवीजन हो रहा था लेवल नीचे आके ब्रोंकस में. इसलिए एक चीज इम्पोर्टेंट जो है बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया. ये हो गया हमारा ट्रैकिया का बाइफर्केशन है. देखो ट्रैकिया बाइफर्केशन है, बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी है, azygos to SVC है, beginning and end of arch aorta है, ligamentum arteriosus है, thoracic duct cross from the posterior आर्च ऑफ aorta स्टार्ट हो रहा एंड हो रहा. दिस इज आर्च और ये खत्म, ये यहाँ से नीचे जाएगा. तो ये पूरा है स्टर्नम के लेवल पे. दिस इज लेवल ऑफ स्टर्नम. तो ये है स्टर्नल एंगल इज समवेयर हियर. दिस इज द स्टर्नल एंगल. तो अगर इस जगह पे देखोगे तो ये आर्च ऑफ aorta यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो रहा है ये पीछे एक. और ट्रेकिया जो है ये दिस इज ट्रेकिया, ये यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा इसके पीछे दिस ट्रेकिया. और बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी
And bifurcation of trachea. बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो हाँ, ये लेफ्ट, ये वायलेट कलर में जो है पल्मोनरी आर्टरी है, हाँ? इसके पल्मोनरी आर्टरी के जो वो रहते हैं चार, सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी आर्टरी, हाँ? तो तो वो वन superior टू थ्री फोर। मतलब superior is most anterior. यस, सुपीरियर इज मोस्ट एंटीरियर, इंफीरियर इज मोस्ट इंफीरियर। हाँ, ओके, ओके। तो ये पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी का डिवीजन होगा। देन एंड एंड स्टार्ट एंड एंड ऑफ आर्च ऑफ aorta हो गया। अजाइगस वेन टू सुपीरियर वेना केवा। तो हाँ, अजाइगस वेन ये भी यहीं क्रॉस होता है। तो लेफ्ट साइडेड, ये राइट साइड है। फिर थोरेसिक डक्ट क्रॉसेस फ्रॉम पोस्टीरियर टू लेफ्ट इसोफेगस, ये भी आता है क्वेश्चन। हाँ, 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 इस जगह पे थोरेसिक डक्ट का क्रॉसिंग होता है फ्रॉम पोस्टीरियर टू लेफ्ट ऑफ इसोफेगस, हाँ। पीछे से इसोफेगस के लेफ्ट में जाता है। एंड हम्म, ये तो कार्डियक प्लेक्सस तो ठीक है, इसमें आने वाले क्वेश्चंस जो है थोरेसिक डक्ट का एक है, हम्म, थोरेसिक डक्ट ये। देन ये वाला हो गया आर्च ऑफ aorta स्टार्ट एंड हो गया। बाइफर्केशन तो दो चीजों का हो गया, ठीक है। हम्म, तो एक्सटर्नल एंगल के हम और एक बार जब रिवाइज करेंगे इसको, तो बेसिक क्या है, थोरेसिक डक्ट एक है, ट्रेकिया है बाइफर्केशन, हम्म, पल्मोनरी आर्टरी बाइफर्केशन, हम्म। एंड एंड स्टार्ट ऑफ आर्च ऑफ aorta, लिगामेंटम आर्टेरियोसिस जो ऊपर जो रहता है लिगामेंटम आर्टेरियोसिस, वो भी इसी लेवल पे है, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, अब ये इंजुरीज, स्टैब एट मैन्यूब्रियम अफेक्ट्स आर्च ऑफ aorta। मैन्यूब्रियम, मैन्यूब्रियम स्टर्नम, कहीं पे भी अगर यहाँ स्टैब है, दिस इज द मैन्यूब्रियम इज लाइक दिस, पूरा ये लाइक दिस, ये मैन्यूब्रियम है। हम्म? अब बोन के ऊपर स्टैब किसने किया या इसके आजू बाजू में किया, तो आर्च ऑफ aorta इज वेरी क्लोज। ये है मैन्यूब्रियम में स्टैब हुआ तो आर्च ऑफ aorta, दिस स्टैब एट राइट साइड ऑफ sternal एंगल। नाउ मैन्यूब्रियम मीन्स ये सीधा सीधा मैन्यूब्रियम, और राइट साइड ऑफ sternal एंगल, दिस इज sternal एंगल, एंगल ऑफ लुई होगा। हम्म? इसके राइट में अगर स्टैब है, तो एसबीसी है। टनल एंगल एसवीसी, यू आर सेइंग हियर, यहाँ पर दिख रहा है एसवीसी ब्लू कलर का, तो वो हो रहा है। ये पिक्चर ध्यान में रखना जरूरी है इंजुरीज को। ये स्टैब पूछता है, एट, बहुत पूछता है, ये बहुत पूछता है। हम पहले एक सिंगल उसमें रिवाइज करते, फिर बार बार इसको कर लेंगे। क्या है, स्टैब हाँ, एट राइट साइड ऑफ टनल एंगल एंड डायरेक्टेड इंफीरियर। अगर इफ इट इज डायरेक्टेड इंफीरियर बट राइट साइड, अगर इस डायरेक्शन में, हाँ, तो तब इट राइट इफेक्ट्स। एक्सट्रीम होगा। हाँ, तो सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ओपन होता है, इसलिए वो राइट एट्रियम को इंजोर करेगा। सुपीरियर वेना केवा इज ओपनिंग इनटू राइट एट्रियम, दैट्स व्हाई वो इंफीरियर जो सामने वाला, व्हेन समवन इज स्टैबिंग ऑन द किसी के बॉडी पे, तो उसका स्टैब का जो नाइफ का एंगल रहता है ना, वो नीचे रहता है। अगर तो इफ इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इज गोइंग डीप बिलो, तो राइट एट्रियम को कर सकता है। अगर स्ट्रेट मारता है, समझो एक कम हाइट वाला पर्सन है एंड सम हायर हाइट वाला, इफ समवन इज स्टैबिंग, तो उसका एंगल जो रहेगा इट विल बी डाउनवर्ड, और वो अगर चेस्ट के स्टर्नम के ये एंगल पे राइट साइड में इफ ही स्टैबिंग, इट विल पंक्चर द राइट एट्रियम, ठीक है। दिस इज दैट पिक्चर। क्यों इन लोगों का बनाते हैं कि दे हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस, ये लोगों के पास में कैसे पेशेंट्स आते, तो वो और कोई स्ट्रेट समवन इज देखो वो वहां हिटिंग। पे ये बात तो मेंशन होगा कि राइट साइड ऑफ स्टर्नल एंगल एंड डायरेक्टेड इंफीरियरली। यस, ये जब क्वेश्चन रहेगा डायरेक्टेड इंफीरियरली, तो इट विल पंक्चर द हार्ट। इफ इट इज डायरेक्टली गोइंग इन दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वे, इट विल पंक्चर दिस एसबीसी। एसवीसी। एसवीसी अगर नीचे एंगल होगा तो हार्ट सीधा राइट एट्रियम में चले जाना है। स्टैब एट द राइट साइड स्टर्नल डायरेक्टेड सुपीरियर, ऊपर अगर करता है तो इट विल टू ब्रेकियोसिफेलिक, सीधा है। ये कैसा बनाया उसने, दिस इज एसवीसी ब्रेकियोसिफेलिक,
and opening into right atrium. हाँ राइट और एट्रियम में ओपन हाँ होगा. देखो, अगर सिंपल सा राइट साइड होगा, मैन्यूब्रियम में अगर मारा तो आर्च ऑफ आयोटा होगा. अगर राइट हाँ, साइड बीच एक्सटर्नल एंगल होगा तो एसबीसी होगा. एसवीसी. अगर राइट नीचे साइड में मारेगा. हुआ एंड डायरेक्टेड इंफीरियरली देन राइट एट्रियम होगा. अगर राइट साइड में यस. हुआ और डायरेक्टेड सुपीरियरली ब्रेकियोसेफेलिक होगा. यस. तो दिस इज ऑल इंजुरीज ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, राइट साइड ऑफ स्टर्नल एंगल. जो चेस्ट में इमीडिएटली व्हेन यू पाल्पेट दिस मैन्यूब्रम, और उसके राइट साइड में, क्योंकि ये जो पोजीशन होता है बॉडी का, इफ यू सी दिस, जनरली समवन इज हिटिंग फ्रॉम फ्रंट, तो दिस कैन बी इजीली एक्सेसिबल. अब इसका हाउ ही स्टैप्स, इफ ही स्टैबिंग डायरेक्टिंग डाउनवर्ड, हार्ट में जाएगा. और कोई नीचे से अगर स्टैब अपवर्ड है तो एस उसमें जाएगा राइट ब्रेकियोसेफेलिक. ब्रेकियोसेफेलिक. एंड स्ट्रेट है एट दिस लेवल, तो इट विल बी एसवीसी. एंड ये सारी चीजें ऑन द राइट ऑफ द स्टर्नम है. और मैन्यूब्रम के बीच में स्टैब होगा थ्रू एंड थ्रू बोन, तो इट विल बी आर्च ऑफ ओर्टा. एकदम. यही अगर ये चीज, दिस इज ऑल ऑन द राइट साइड. हम आपको पूछते अभी रहेंगे, आप फिक्र मत करो. हम पूछते रहेंगे सो दैट वी आर yes. एब्सोल्युटली अवेक. आज मेरा भी बहुत हेवी गया, जानते हो हमीद भाई. हम्म. मेरा इवनिंग का चलो जो, हो जाएगा. हाँ हाँ हाँ, टांग देंगे हम लोग इंशाल्लाह. इवनिंग का जो कैसा है, हमको ये सारे चीजों में से टेम्पो रखते हुए लंबी लड़ाई है, खींचना है इसको लंबा, है ना. हाँ हाँ तो ये चीज जो है, अगर हम इंडिविजुअली कुछ भी पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं इम्पॉसिबल होगा, है, समझ लेना. नहीं दिस होगा. एग्जाम इज और, इम्पॉसिबल. और एक तो चीज है ना, जो हम लोग का अभी उम्र हो गया तो थोड़ा गाना सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, काम नहीं चलता. हंसते खेलते करना है इसको, बहुत हाँ. सीरियस नहीं कर सकते. हम्म. अब ये हो गया बारिश खूब हो रहा सुपीरियर है मीडिया. अमित भाई, बारिश खूब हो रहा है. हाँ, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है. माय गॉड. चलो हम पूछते नाउ रहेंगे. कमिंग टू, आपको अगर पढ़ना है और एक बार पढ़ लो, हम पूछेंगे. लेकिन ये जो स्टेप का ये पूछता है, बहुत बार पूछता है. yes, stabbing direct to manubrium sternum, directly through and through to arch of अच्छा aorta. पायोटा. हाँ If the stab is directed downwards on the हाँ right side of the manubrium, angle of Lewis downwards, then it will be right atrium. हाँ And straight away it will be SVC, superior vena. No, superior vena cava. If it is हाँ. directed upwards, then it will be right brachiocephalic vein. एकदम. चलो. इंटीरियर मीडिया स्टेनम के तीन पार्ट्स है, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर. देखिए ये एंटीरियर में थाइमस है, सुपीरियर में भी अगर जब स्टर्नम ओपन करते तो इसलिए थाइमस ही स्टर्नम, फर्स्ट पार्ट इज थाइमस इन द एंटीरियर मीडिया स्टेनम. हाँ हाँ. इसलिए फर्स्ट पार्ट टू एनकाउंटर व्हेन डूइंग स्टर्नोटॉमी इज थाइमस. ठीक है. मिडिल में देख लिया, मिडिल में देखो इसमें वो भी दिया है, निमोनिक्स, वॉइस प्लस पोस्टीरियर मीडियन स्टर्नम ऑफ अरब प्लस. अरब प्लस. कहाँ से लोग पकड़ के लाए. सच में ये VOICE. अब वी क्या है? वी 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 वॉइस. ये क्या किया. सुपीरियर वेना वेन से वो अपर वन, लोअर वन हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना क्या हुआ, अपर हाफ ऑफ इंफीरियर वेना क्या हुआ. ये होगा हाँ वेन्स. अच्छा, वेन्स हो गया, ये वेन्स हो गया. VOICE. ये हाँ अगर वेन्स है तो हाँ. वो अपर क्या हो हाफ गया. ऑफ, ठहरो इसमें व्हाट इज वॉइस प्लस, इसमें क्या है वो, अरब प्लस कुछ तो होगा इसमें. ऐसा छुपाए रखा है ये भी. वॉइस ऑफ अरब प्लस. वॉइस प्लस ऑफ अरब प्लस. हाँ, ये कुछ कुछ राज का बात है, छुपा के रखा कुछ है. राज है और कहीं दिया नहीं है उसने इस राज का. मीडिया, हाँ, मिडिल मीडिया स्टेनम वॉइस. वो क्या है, वो तो समझ में नहीं आ रहा. अयोर्टा को बोल रहा है. आई फिर क्या है, आई समथिंग एल्स. सी इज, इसोफेगस. ओ इज इसोफेगस. हाँ हाँ, इसोफेगस. अच्छा, वो तो आई इसमें क्या नहीं हुआ. है. आई क्या हुआ देखो.
अरे ये तो दिख रहा भी नहीं है ना, इसोफेगस इज नॉट। अच्छा वहां पर दिया आगे। हाँ, हम्म। अरब में है। अरब में पोस्टीरियर मीडियस्टेनम ऑफ अरब प्लस, अगर ये देखिए ARAB, हम्म। तो इसमें अजाइगस है। अजाइगस एक, हम्म। अजाइगस, एंड आर इज और अब फिर ए है, आयोटा। वन मोर, आयोटा। डिसेंडिंग आउटा, यस, आयोटा आउटा, डिसेंडिंग। बी एंड में क्या बी है? इज वेगस कर दिया उसको, अरब बना दिया। बी। बहुत ही यार, क्या कहीं दिया है क्या इसने? इसको ही पूछना पड़ेगा बुक बनाने वाले को, इसका क्या है। हम्म। हम्म, लेकिन हमारे ठीक है साथ इसमें। एमएससी ऑट में तो इथोपियन पढ़ता था, अलीपुर के। हाँ हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा था अमित भाई। लेकिन हम्म, बेचारे वो इंग्लैंड में रिफ्यूजी था। हाँ वो जो एक्साइल ओके होता ओके, होता है। हाँ। होता है ना वहां पर, है हाँ, वीजा उस तो टाइप का। अली वॉज ए वेरी गुड बॉय। फिर हम लोग एमएससी ऑट पढ़े, पास किए। फिर हमको पता चला ही डाइड ऑल ऑफ अ ओ सडन। ओके। हाँ देखो, लाइफ टफ होता है ना। बच्चा था अली। हम्म। लाइफ का कुछ तो ठीक ठीक। इसमें देखेंगे हम, मिडिल में तो हार्ट है, ये बात है। ठीक है, हम्म। हार्ट इज देयर मिडिल, असेंडिंग हम्म। आउटा आना चाहिए, पल्मोनरी ट्रंक और सुपीरियर इंफिनिटी। ये बेसिक क्या है, हम इसको इसमें जाने के बजाय, चलो मिडिल में हार्ट है ना, तो हम्म। हार्ट से एसोसिएटेड जितने हैं वो ले लो। हाँ। यू हैव गॉट हार्ट हिज साइड, राइट लेफ्ट, आयोटा वेंट्रिकल्स। ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। तो लो। सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, दोनों आ गए इसके साथ। हाँ, हम्म। लोअर हाफ ऑफ एसवीसी, अपर हाफ ऑफ आईवीसी। आईबीसी। हाँ, हम्म। और यहाँ से अओर्टा जो आ रहा है, दैट इज असेंडिंग अओर्टा। हाँ। हम्म। लेफ्ट से जो, लेफ्ट से असेंडिंग अओर्टा आ गया। हम्म। देन हार्ट, असेंडिंग अओर्टा, और इसमें जो आ रहे हैं पल्मोनरी ट्रंक्स, हम्म। पल्मोनरी ट्रंक, अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक दोनों भी इंपॉर्टेंट है ना, वो हार्ट के साथ ही आ गए। हाँ ठीक हाँ, है, हार्ट के साथ आता तो। ये आ गया पल्मोनरी ट्रंक, इधर से आ गया अओर्टा। तो हम्म। ये हार्ट के ही पार्ट से, और सुपीरियर वेना का हुआ, इंफीरियर, ये चार तो हो गए, पांच तो हो गए, हार्ट हो गया, असेंडिंग अओर्टा हो गया, पल्मोनरी ट्रंक हो गया, सुपीरियर इंफीरियर। अब रहेगा वो फ्रेनिक नर्व, छोड़ता नहीं है, हार्ट के बाजू में ही जाता है फ्रेनिक नर्व। हम्म। हाँ, हम्म। फ्रेनिक नर्व इज गोइंग ऑन दिस, एंड बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया ऐड करना है इसको। हम्म, एकदम। तो इस तरह से, हम्म, तो ये होगा वॉइस प्लस जो भी है। नाउ पोस्टीरियर में अगर देखोगे, पोस्टीरियर सबसे पीछे क्या था अपना, वैसे भी इसोफेगस है। हाँ, हम्म। उसके हम्म। साथ दोनों वेगस आ गए लग के, तो हाँ। पोस्टीरियर मोस्ट इज इसोफेगस, देन टू नर्व्स, वेगस नर्व्स आ गए हम्म। पोस्टीरियर। थोरैसिक डक्ट भी आ गया पीछे ही, हम्म। थोरैसिक डक्ट, देन देखो। अजाइगस हेमिस आ गए। यस, डिसेंडिंग अओर्टा, हम्म। एजाइगस हेमी अजाइगस हेमी रहता है ना सर, डिसेंडिंग आयोटा। एंड अओर्टा, हम्म। अओर्टा डिसेंडिंग। हम्म। तो अब हम देखोगे कि असेंडिंग अओर्टा जो है वो मिडिल में है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एंड इट हम्म। इज गोइंग बैक हम्म। पीछे। इसलिए डिसेंडिंग अओर्टा, इसोफेगस, थोरैसिक डक्ट, अजाइगस एंड वेगस, ये पूरे पीछे चले गए। तो अब इसमें क्या था, ए बी, ठीक है। अब कंफ्यूजन कुछ होगा नहीं, अपने को ऐसा लगता है हार्ट के साथ में सुपियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, दो वेसल्स एंड हार्ट इटसेल्फ, पांच ये कवर हो गए। 1 2 3 4 5, एक दो नर्व इसके अंदर फ्रेनिक है, उसमें वेगस है। हम्म। ठीक है, हम्म। मिडिल में फ्रेनिक है, इसलिए अपने जो लंग्स के जो हाइलम के एंटीरियरली फ्रेनिक है, पोस्टीरियरली वेगस है, वो पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम में चले गए। ठीक हम्म। है, यहाँ वेगस चले गए दो, यहाँ पर फ्रेनिक आ गए नर्व। और इसमें असेंडिंग अओर्टा आ गया, उसमें डिसेंडिंग अओर्टा आ गया, हम्म। अओर्टा। और वेन्स अगर देखोगे, तो इसके अंदर सुपीरियर इंफीरियर वेना क्या हुआ, और इसके अंदर अजाइगस हेमी अजाइगस, हम्म। ये है। एकदम। और पल्मन
थोरेसिक डक्ट एक इसमें एडिशनल पीछे गया तो उसके हिसाब से यहाँ ट्रेकिया आ गया। यहाँ एकदम। थोरेसिक डक्ट है, हाँ, हम्म, और तो उसके हिसाब से यहाँ ट्रेकिया है। हम्म, ट्रेकिया इज द मिडिल मीडियस्टेनम। और ये हम पहले से ही देखे, सबसे पीछे बैक साइड में इसोफेगस है, हम्म, सबसे बैक, तो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में आ गया। और मिडिल मीडियस्टेनम का बेसिक मेन चीज है हार्ट। हम्म, तो अब हम मिडिल मीडियस्टेनम कैसा याद रखेंगे कि मेन ऑर्गन इज हार्ट, हम्म, पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का मेन ऑर्गन इज इसोफेगस, सबसे पीछे। ठीक है। अब हम्म, इससे रिलेशन में, हार्ट से रिलेशन के जो हो गए, असेंडिंग आउटा, सुपियर इंफियर वेना केवा, पल्मोनरी ट्रंक, फ्रेनिक नर्व, ट्रेकिया। तो हम्म, यहाँ पर ट्रेकिया भी है इंपॉर्टेंट। ट्रेकिया मिडिल में है, ट्रेकिया, इसोफेगस पीछे है। हम्म, दो ट्यूब्स में से यहाँ ट्यूब अलग हो गए। सुपियर वेना केवा में जो ट्यूब, सुपियर मीडियस्टेनम में दो ट्यूब थे क्या, वो ट्यूब के दो अलग हो गए। एक ट्यूब हम्म, चलेगा पीछे, एक ट्यूब रह गया बीच में, हम्म, है ना। हम्म, सुपियर मीडियस्टेनम के दो ट्यूब में से एक ट्यूब आगे, एक ट्यूब पीछे। हम्म, ट्यूब एक याद रखना है। हार्ट याद रखना है, हार्ट के साथ में पूरे हो गए। और दो नर्व जो रहते, वो एक नर्व आगे, एक नर्व पीछे। हम्म, वहां पर जो नर्व देखे थे ना सुपियर में, हम्म, टी वैन टी जो था, हम्म, तो नर्व जो थे वहां पर मेन, हम्म, वेगस एंड फ्रेनिक, तो उसके दो हो गए। ट्यूब जो दो थे मेन, उसमें आगे चलेगा ट्रेकिया, पीछे चलेगा इसोफेगस, और थोरेसिक डक्ट पीछे चलेगा, ट्यूब्स। हम्म, है। हम्म, आर्टरीज जो थे, आर्टरीज यहाँ पर एक असेंडिंग है, वहां पर पीछे डिसेंडिंग है। हम्म। और टी हो वेन्स गया में यहाँ पर, थाइमस। हाँ, टी हो गया थाइमस। टी एंटीरियर में थाइमस आ गया, यहाँ पर भी है। और वी यहाँ का अगर अपन ने टी वन टी देखे, तो यहाँ पर इस मिडिल में वेन आ गया, सुपियर वेना का हुआ, इंफीरियर वेना का हुआ। और पोस्टियर में वेन्स आ गए, अजाइगस वेन्स। हम्म, ठीक है। हम्म। तो एक टी मिनट वन टी बाबू, जो यहाँ का है, एक पिक उठा यहाँ पर लेते टी हैं। वन, एक मिनट, इसका तो वो जो आप सुपीरियर फिन, हाँ इसका तो हाँ, ठीक है, हो गया। टी वन टी, यस। हम्म, अब वही टी वन टी को डिवाइड कर देना है यहाँ पर, सुपीरियर, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर में। हाँ, हम्म, हम्म, मिडिल में हार्ट के साथ में 5 आइटम्स आ जाना चाहिए। हार्ट बोलते हैं उसके जितने अटैच है, असेंडिंग आउटा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना cava, इंफीरियर वेना cava, फ्रेनिक नर्व, ये सब एक साथ आ गए। और ट्रेकिया इसके साथ आ गया। तो मिडिल मीडियस्टेनम हैज गॉट ऑल मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट, हाँ, उसके हम्म, बाद असेंडिंग आउटा, उसके बाद में पल्मोनरी ट्रंक, जो हार्ट से ही आ रही है दोनों भी। देन सुपीरियर इंफीरियर वेना cava, फ्रेनिक नर्व एंड ट्रेकिया। हम्म, ठीक है। और खाने पीने के आइटम जो है वो पीछे डाल दिए, पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, इसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, हम्म, अजाइगस, हेमी अजाइगस, और डिसेंडिंग। है। ये तो दो तीन बार करना पड़ेगा, करने से हो जाएगा। यस, इसको इसको बार बार करना पड़ेगा। तो हम अगर देखोगे मिडिल, मिडिल एंटीरियर में कुछ नहीं है। क्वेश्चन अगर सुपीरियर का आता तो टी वन टी, मिडिल का आता तो हार्ट दिमाग में आना चाहिए, हार्ट सबसे पहले। और हम्म, पोस्टियर आता तो इसोफेगस आना चाहिए, हम्म, इसोफेगस। हम्म, ठीक है। अब ये पिक्चर में फिर से वही सब चीजें दिखाया उसने हम्म, कि पोस्टियर में जो ये दिस इज फ्रेनिक आगे रहता, दिस हम्म, वेगस इज बिहाइंड, ये आर्च डिसेंडिंग। और ये अपना जो पल्मोनरी का था क्या, वो इंफीरियर, दिस इज एंटीरियर, इंफीरियर, देन ब्रोंकस। फिर से वही पिक्चर है ये, हम्म, राइट एंड लेफ्ट। हम्म, दिस इज अजाइगस, हम्म। ये इंफीरियर, दिस इज एंटीरियर, सुपीरियर वेना cava। चल, इसमें क्वेश्चन क्या है। स्टर्नल एंगल में सीधा स्टैप करने से आर्च, किस आर्च पे होता है? स्टर्नल मैन्युब्रम में आर्च, और स्टर्नल के मैन्युब्रम के राइट साइड में, ऊपर, बीच में, नीचे। नीचे मारेंगे राइट एट्रियम, बीच में मारेंगे सुपीरियर वेना का, ऊपर मारेंगे ब्रेकोसिफेलिक वेन। ठीक है। सर्जिकल पॉइंट, वर्टिब्रल मेटास्टेसिस एट T5 मोस्टली इन कॉन्टेक्ट विथ अजाइगस वेन। T5 लेवल पे अगर होता है मैलिग्नेंसी, हाँ, तो अजाइगस वेन जो है, अजाइगस वेन, हम्म, थोरेसिक T5 वर्टिब्रा, हाँ, T5 का अजाइगस, ये ऐसा है ना, इनका मैलिग्नेंसी होगा तो ये वेन के थ्रू उसका स्प्रेड हो जाता है, इन कांटेक्ट विथ अजाइगस वेन, ये बोल रहा है।
थोरासिक डक्ट, ये एक बार देख लो इसका कैसा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पिक्चर इतना सिंपल बना है। ये स्टार्ट हो रहा कहाँ पर देखो, सिस्टर्ना काइली, ये this is starting at the level of T12, begins then enter begins as cisterna chyli, then enters diaphragm at T12 level हाँ between 2A aorta and azygous vein। ये होता है डायफ्राम में, इसकी एंट्री होती है T12 पे। हम्म T12, अब डायफ्राम के हमको आगे याद रखना पड़ेगा, T8 10 12। हाँ, हाँ हाँ 8 में जाता है इंफीरियर वॉइस वेना ऑफ केवा। अमेरिका, वी ओके, में वीना केवा, ओ से इसोफेगस, 12 में आयोटा। बस फिर क्या है अब। वॉइस ऑफ इनफीरियर वेना अमेरिका। केवा, इसोफेगस, अओर्टा। तो अओर्टा के साथ, अओर्टा के बाजू से ये जाता है थोरैसिक डक्ट ऊपर। हम्म Cisterna chyli then enters diaphragm at T12 level between two A's, aorta and azygous vein। ये दे दिया ऐसा, एक हाँ तरफ aorta है, एक तरफ azygous vein है, दो A's के बीच में से इसकी एंट्री है। Then pass posterior to left esophagus, ये जो है टू लेफ्ट ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस से पोस्टीरियर। ये एक पूछता है क्रॉसिंग कौन सी लेवल पे है इसका, टी T5। T5, जो बैनिग्राम का फिर से है वो स्टर्नल एंगल, तो वही है ये स्टर्नल एंगल पे ये क्रॉसिंग होता है इसका। थोरासिक डक्ट क्रॉसिंग राइट टू लेफ्ट, दिस इज राइट साइड। हाँ, अब ये राइट से रहता है और लेफ्ट में जाता है, राइट टू T5 में। लेफ्ट। हाँ, T5, ठीक है। एंड इट ओपन्स इनटू, passes behind the carotid sheath, ये भी है carotid sheath बहुत पीछे। देन इट ड्रेन्स बिटवीन लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। ये क्वेश्चन आता, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट IJV एंड लेफ्ट एस सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन इंटरनल जुगुलर के जंक्शन के पास इसकी ओपनिंग है ये। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि लेफ्ट IJV एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के क्रॉस हो रहा है ये T5 पे, राइट से लेफ्ट क्रॉस हो रहा है ये, इट इज ऑन राइट साइड, तो राइट से लेफ्ट, राइट एकदम। में है अजाइगस, लेफ्ट में है अओर्टा, टू एस, इधर अजाइगस वेन, इधर अओर्टा। डायफ्राम की एंट्री का लेवल है इसका T12, वॉइस ऑफ ठीक है। अमेरिका। बस वॉइस ऑफ अमेरिका, वेना क्या हुआ, इसोफेगस, अओर्टा। ये बात ये हमेशा कंफ्यूज करता था, आपने ये बहुत सही बता दी, VOA, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब इसका ड्रेनेज कैसा है, वो थोरैसिक डक्ट का ड्रेन बाय लिम्फेटिक, ये पूरा थोरैसिक डक्ट करता है इतना पार्ट छोड़ के, डार्क ग्रीन पार्ट इज ड्रेन्ड बाय लिम्फेटिक डक्ट्स अलग से बॉडी के, लेकिन थोरैसिक डक्ट पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, दिस कंप्लीट दिस मच पार्ट इज ड्रेन्ड। सो थोरैसिक डक्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज, इट ड्रेन्स abdomen, both lower extremity, left upper, left head neck and left thorax। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कभी राइट का है कि लेफ्ट का है, तो लेफ्ट साइड का हैंड पूरा हो गया, दोनों एक्सट्रीमिटी हो गए एंड एब्डोमेन होगा, लेफ्ट चेस्ट, लेफ्ट हेड, लेफ्ट 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 रहेगा साली, छोड़ेगा क्या है, राइट साइड का हेड, राइट हैंड आर्म और राइट साइड का चेस्ट, इतना छोड़ के राइट साइड का अपर पार्ट बोला कि इट इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन आ सकता है उसमें, ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, राइट या लेफ्ट, राइट ऐसा नहीं, करके सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट का करता है ये। ये लेफ्ट का करता, क्वेश्चन बनाते वक्त बनाएगा ना, thoracic duct drains from the left upper extremity, left lower extremity, right lower extremity, कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, सर्जिकल पॉइंट्स ये देखो आप फिर से क्या दिया, ड्यूरिंग थोरैकोटॉमी फॉर इसोफेगस्टॉमी, थोरैकोटॉमी जो करते चेस्ट ओपन करना, इसोफेगेक्टॉमी सीओ एसोफेगस में, इंजुरी ऑफ थोरैसिक डक्ट में ऑकर इन एनी साइड बट मोस्ट कॉमन साइड व्हेन इट पासेस पोस्टीरियर टू लेफ्ट साइड। ये जो T5 लेवल पे है क्या, यहाँ जो क्रॉस हो रहा, तो इसोफेगस जब निकालते हैं तो उस टाइम पे थोरैसिक डक्ट की इंजुरी T5 लेवल पे क्रॉसिंग पे होती है। वन थिंग इज इंजुरी टू thoracic duct। Second, injury of thoracic duct causes collection of chyle in posterior mediastinum, causing chylothorax। तो कहाँ जमा होता है, पोस्टीरियर, पोस्टियर पोस्टीरियर माइंड। मीडियास्टेनम,
पोस्टीरियर में थोरासिक डक्ट, इसलिए उसकी इंजुरी वहीं पे होगी, जमा उधर ही होगा। काइलोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स बोले तो दिस इज कलेक्शन ऑफ द काइल इन द थोरैक्स, नॉट इन द प्लूरल कैविटी भी नहीं है ये। काइलोथोरैक्स ट्रीटेड मेनली बाय मीडियम चेन enteral feeding, medium chain enteral feeding, then total parental nutrition with proper drainage and antibiotics we fail thoracic duct ligation। क्या क्या है देखो, मीडियम चेन इंटरल फीडिंग, ये जो है क्या, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन एंड मीडियम मीडियम चेन। ये फैटी एसिड्स का है, ये मीडियम चेन फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो फैट्स का प्रॉब्लम होता है इसमें, तो उसका मीडियम चेन इंटरल फीडिंग विद टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। फिर नहीं हुआ तो ड्रेन करना है उसको, एंटीबायोटिक देना है। अगर वो भी फेल होगा तो उसको सर्जरी करके वहां से जहाँ इंजरी हो गई उसको लाइगेट कर देना है, क्योंकि लीकेज है। थोरैसिक